Mr. Murray Sardana. I want everybody to be seated. जब हम बैठे होते हैं ना बातों में ठहराव वो रुकती है जब सीधे बात ऐसे आती है ऐसे निकल जाती है बैठ जाए जल्दी जल्दी बैठ जाए Wonderful. I think you all deserve a huge round of applause. Impeccable. This is astounding. This is amazing. मैंने इतनी जल्दी proud sense of the honestly पिछले 10 वर्षों में नहीं देखा है. I salute you from the core of my heart. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming to Amritsar. Thank you for coming to your national convention. Thank you for making it look national convention. Thank you for what you are. Thank you for what you do. Thank you for promoting Sarso. Thank you for sharing Sarso. Thank you for loving Sarso. Thank you for living Sarso. Thank you for being Sarso. Good morning, everyone. I can't hear you. Good morning, everyone. I can't hear you. Good morning, everyone. I expect louder response. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I'm here to officially and cheerfully welcome you all to the 4th National Convention of Sarso. 4th National Convention of Sarso. I'm delighted, deeply honored to witness this excitement in the air. आज हवाओं में कुछ बात है, आपको लगा है? Thank you for making it feel like that. Let me be quick to recognize this event is principally designed to enhance the development of the participating delegates. This event is principally designed to empower the participating delegates. This massive gathering, ये बड़ा समूह, is the testimonial of the enduring strength Sarso enjoys today. I promise, this event, this workshop will offer you all a leadership full of vision. आप दूर अपना भविष्य आज वर्तमान में देख पाएंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ. I promise this event will offer you all a leadership full of values, a leadership empowered for a bright future. We are privileged to have with us as our keynote speakers who are real-life heroes, who are real-life achievers, are sincere, diligent Sarso distributors. I recall years ago, सालों पुरानी बात है, नितिन धीमान जी, जोरदार तालियां तो बनती हैं, ज्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं थी,
चंद लोग थे। और मैं कहा करता था दोस्त, आने वाले वक्त में इस इंडस्ट्री से बने लोग वास्तविक हीरो कहलाएंगे, वो एक सितारा बन जाएंगे, उनका स्टारडम देखते ही बनेगा। हालांकि ऐसा मंजर हमारे दोस्त के जीवन में हर दिन बनता है, लेकिन आज का मंजर भी खूब देखने वाला था। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, जो वर्चस्व, जो शौहरत हमारे इन सितारों को हासिल हुई है, ये शौहरत आप सबके जीवन में जल्द से जल्द भगवान आशीर्वाद के रूप में आपको दें। The very purpose of this workshop is to enrich ourselves from the experiences of these great real-life heroes, superheroes, the honorable speakers of the convention. My dear friends, I'll also make an attempt. मैं भी प्रयास करूंगा। I'll make a certain attempt to share some learning from various disciplines of knowledge which enrich my business and my life as a whole. मेरा प्रयास रहेगा, जो थोड़ा वक्त मुझे मिले, मैं भी कुछ ज्ञान की बातें जिन्होंने मेरा जीवन बनाया, जिन्होंने मेरा जीवन प्रकाशमय बनाया, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। I must tell you, I am a proud Indian. मुझे खुद को बताने दो मेरा पूरा परिचय, मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पर। तो ज्ञान की गंगा मेरे देश में बहती है, दुनिया के किसी कोने में ऐसा ज्ञान यज्ञ कहीं नहीं होता। और आज इस महान भारत के, इस महान ऐतिहासिक नगर अमृतसर में मैं आपको वायदा करता हूं, ज्ञान यज्ञ का अनुभव आपको यहां पर कराऊंगा। लेकिन इस यज्ञ में आहुति आप सबको देनी होगी। The ancient Indian wisdom, भारत का वो पुरातन ज्ञान जो गायत्री माता से होता हुआ वेदों में बटा, वेदों में बना, आगे पुराणों में उपनिषद, जिनमें से निकलकर गीता। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जापान गए थे। एक प्रधानमंत्री भारत की शान, भारत की पहचान, एक बहुत बड़े मुल्क में जाकर एक भेंट देता है। वो भेंट केवल भेंट न होकर हमारे भारत का परिचय होता है। आपको मालूम है भेंट में भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को क्या दिया? श्रीमद् भगवत गीता। हमारे देश में कानून किसी की नहीं सुनता, कानून कुछ नहीं देखता, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवी में, देखा आपने? लेकिन कानून भी एक बात का बहुत आदर करता है, कटघरे में खड़े होकर आप बस उस पावन किताब पर हाथ रखकर बोल दो कि मैं गीता को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। गीता के वर्चस्व के बखान में मैं घंटों नहीं, मैं दिनों तक बात कर सकता हूं। लेकिन अभी इतना बता देना चाहूंगा, गौरव होना चाहिए हमको कि हम भारत में जन्मे, हम भारत में पैदा हुए। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है, आदर करता हूं, हम सबको करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने शुरू किया धर्म, लेकिन बिफोर क्राइस्ट भी सदियां थी। हमने पढ़ा है सन 300 BC में फलानी बात थी, फलानी घटना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा है, जो बिफोर क्राइस्ट हुए। और उनको पढ़ते पढ़ते भी समझ आया कि चाणक्य ने भी कुछ पढ़ा था, विवेकानंद ने भी कुछ पढ़ा था। जनाब आइंस्टाइन के बारे में पढ़ो, वो भी बताता है कि मैंने जब गीता को पढ़ा तब समझ में आया कि माजरा क्या है। निकोलस टेस्ला को पढ़ो, वो आपको बताता है सब कुछ बहुत मुश्किल लगता था, जब मैंने गीता को पढ़ लिया तब समझ में आया रहस्य क्या है। स्टीव जॉब्स सदी के महानतम CEO अपनी जीवन यात्रा में से एक बहुत बड़ा पड़ाव भारत में आकर लगाते हैं।
एक साल हिंदुस्तान कृष्ण की नगरी में रह कर गए, गीता का पाठन यहां से करके गए। बहुत से वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हम सपनों में मशीनें बनाते हैं, और सपने प्रेरित कहां से होते हैं? उस परम सत्ता से जिसके अनेकों नाम हैं। मैं बहुत ज्यादा अध्यात्म में ना जाता हूं, अब विज्ञान की बात करता हूं। अध्यात्म में एक विज्ञान है। दोस्तों, मैं अपनी बात को रखूंगा, पूरा करूंगा। अभी पुनः मैं आप सभी का इस मंदिर में स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है मैंने इस कन्वेंशन को मंदिर का नाम दिया। मंदिर किसे कहते हैं कोई बता सकता है? ओके, आई कैन हियर दैट। मंदिर जनाब उस स्थान को कहते हैं जहां पर हम मूर्तियों में अपने भगवान को देखकर अपनी प्रार्थनाएं उन्हें अर्पित करते हैं, याचना करते हैं कि अब बदले में आशीष मिले। बिल्कुल ठीक। लेकिन मंदिर, अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर आप जाओ, इस संस्कृत भाषा से निकला है, मन का द्वार। मंदिर का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर बुद्धि पर विराम लग जाता है, जहां पर बुद्धि रुक जाती है और स्वतंत्रता प्राप्त होती है आत्मा को, उस ऊर्जा को जो उस सत्ता से जुड़ना चाहती है कि मैं नहीं बोल रहा, आई एम टू स्मॉल टू ओपाइन ऑन दिस पायस सब्जेक्ट। मैं बहुत छोटा हूं, मैं तो बता रहा हूं जो सत्य है। मंदिर वो स्थान है जहां पर मिस किए जाते हैं, जाते घंटी बजाते हैं, घंटी के नीचे खड़ा होकर हम एक आवाज का आवाहन करते हैं। दैट इज ऑल्सो विज्ञान, वो एक साइंस है। अब आप अनुभव करेंगे जब मंदिर जाएंगे, उस वक्त मस्तिष्क चुप हो जाता है, एक अजीब सी गूंज हृदय में, दिमाग में आती है, मस्तिष्क चुप होने लगता है। हम मंदिर में मस्तिष्क को चुप करवाने के लिए जाते हैं। जब ये बुद्धि चुप होती है, तब वो ऊर्जा, जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं, वो ऊर्जा, उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है काय की, जुड़ने की। किससे? उस परम सत्ता से, उस परम ईश्वर से, उस परम आत्मा से, उस परम प्रकाश से, उस परम शक्ति से। इस इवेंट का नाम हमने दिया लीडरशिप एम्पावरमेंट वर्कशॉप। पूछूंगा नहीं, मालूम है आप एम्पावरमेंट चाहते हैं, तभी यहाँ पर। एम आई करेक्ट टू से दैट? आप चाहते हैं आपको शक्तियां मिले, आप चाहते हैं शक्तियां मिले, तो जुड़ना होगा उस पावर हाउस के साथ, जुड़ना होगा उस पावर हाउस के साथ जहां से हमको करंट मिलता है। छोटी मोटी बैटरी से निर्वाह होने वाला नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी सोच हमारी नहीं है। हमें बहुत बड़ा करना है। एक 0 वाट के बल्ब को जलाने में सीमित ऊर्जा चाहिए, सीमित पावर चाहिए। 100 वाट की बल्ब को जलाना हो, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। 200 वाट के लिए और ज्यादा। और हम जिन्हें खुद प्रकाश पुंज बनना है, और हम 400 वाले जिन्होंने भारत को फिर से गौरवान्वित करना है, हमें कितनी पावर चाहिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमको डायरेक्ट तार वहां जोड़ दें, यही मंदिर का मतलब है। मैं जहां तक अपनी जान पहचान और काफी, बिलीव मी काफी है, और मैं चाहता हूं कि जान पहचान आपसे होकर जाए। क्यों? हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, पर भगवान का परिचय भी नहीं है। चिट्ठी तो लिख डाली, ईमेल ड्राफ्ट पूरा तैयार कर दिया, तू एड्रेस पूरा किसी को मालूम नहीं। वो चिट्ठी जिस पर पता ना लिखा हो, वो कैसे गंतव्य मंजिल तक सही पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। तो वह जान ले, वो एक प्रकाश है। हर धर्म में, चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या वो मुसलमान धर्म हो, दुनिया के हर धर्म ने भगवान को अनेकों नाम दिए, लेकिन एक नाम जो कॉमन है, जिसे हर धर्म ने स्वीकारा, वो है लाइट। हिंदू ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब सिंबल ऑफ लाइट। सिख
प्रकाश पुंज। क्राइस्ट गॉड इज लाइट। हमारे मुसलमान भाई जब हज को जाते हैं, वहां पर अपने अल्लाह को आखिरी इबादत के रूप में मालूम है क्या पंक्ति बोलते हैं? नूरे इलाही हज कबूल फरमाओ। नूरे इलाही मतलब हम उस अल्लाह को नूर माने लाइट कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों चलो इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से पहले आवाहन करें उस प्रकाश का कि वो आए और हमारे ब्रेन सेल, इट इज साइंस, इट इज प्योर साइंस, लेट अस इन्वोक द डिवाइन लाइट। हम सब मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओ नो 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 नो, डू नॉट टेक मी अदरवाइज, आई एम नॉट अ बाबा। नो होगस पोगस, इट इज प्योर साइंस, ये विज्ञान है। गायत्री मंत्र जिन ऋषियों ने बनाया वो महानतम वैज्ञानिक कि दरअसल पदार्थ और ध्वनि जगत के बीच का एक रिश्ता है गायत्री मंत्र। इसमें ऐसे 24 सिलेबल चुने गए जिनके उच्चारण से, ये मैं नहीं बोल रहा, मेडिकल साइंस बोलती है। ब्राजील जैसे मुल्क में जहाँ पर संस्कृत वैदिक लैंग्वेज की किसी को कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर भी नेशनल रेडियो चैनल्स पर, कई चैनल्स पर हर रोज गायत्री मंत्र बोला जाता है। अमेरिका के कई बड़े बड़े शहरों में गायत्री मंत्र रेडियो पर प्रसारण किया जाता है। इट इज साइंस, इट इज बियॉन्ड लैंग्वेज, इट इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट, इट इज बियॉन्ड आवर लिमिटेड विजन, इट इज प्योर साइंस। गायत्री मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, दरअसल प्रकाश हमारे मस्तिष्क में हमारे ब्रेन सेल्स को चार्ज करने लगता है। मैं बार बार जो कहना चाह रहा हूं वो आप समझ लो। हम यहाँ पर आए हैं अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाने के लिए। किसके लिए? अपनी बुद्धि का सशक्तिकरण करने के लिए, लीडरशिप एम्पावरमेंट के लिए। मेंटल एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। साइंस कहती है हम आम लोग अपने माइंड का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते। कितना? 5% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इतना करने से अगर इतना हासिल हुआ, कल्पना तो करो हमारे नितिन दिमाग जी ने अगले 5% चार्ज कर लिए तो होगा। सबने उन बाकी सोए हुए ब्रेन सेल्स को अगर एक्टिवेट कर दिया तो होगा क्या? एटॉमिक बम क्या है जनाब? एटम का साइज ही कितना होता है, लेकिन उस एटम को चार्ज जब किया जाता है वो विस्फोटक बन जाता है। हमें अपने मेंटल स्ट्रेंथ को एम्पावर करने के लिए इसे चार्ज करना बहुत जरूरी है। तो जॉइन मी once I chant गायत्री मंत्र to invoke the divine power to endure the mental strength, the life. Everybody with me? Yes or no? Yes. Do you have गायत्री मंत्र? चले मैं आपको अनुवाद में बताता हुआ भावार्थ बताता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं कि तू आ जा, तू ही संभाल ले, मेरा सारथी बन। महाभारत में अर्जुन ने विजय प्राप्त करी तो कैसे करी? क्योंकि उसका सारथी कृष्ण था। क्या कृष्ण ने धनुष बाण उठाया? ना। चक्र का इस्तेमाल किया? ना। कोई तलवार? ना। केवल ड्राइवर बन गया। गायत्री मंत्र में हम कहते हैं आजा और सारथी बन जा। सारथी मतलब जब एक ही शरीर में 2 रथी सवार हो जाएं उसे हम बोलते हैं सारथी। जब इस आत्मा के साथ उस परमात्मा की तार जुड़ जाए तो हम बन जाएंगे रथी सारथी। जब इस रथी में से आत्मा बाहर निकल जाती है तो क्या रह जाता है? अरथी। तो जब तक हम यहाँ पर हैं हम आवाहन करते हैं उस प्रकाश का कि तू मेरा सारथी बन के रही हो। मैं कई बार कहता हूँ जीवन में बहुत मौके मिले, बहुत ऊंचाइयां मैं छू पाया। इस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ। जब मुझे ये मौका दिखाया सुनाया जा रहा था, मैं अकेला कहाँ था, साथ में कई दोस्त थे, बराबर समझाया गया, बराबर दिखाया गया, लेकिन मुझको नजर क्यों आया? आज मैं आपको बता सकता हूँ रहस्य क्या है। मेरे साथ एक लाइट थी, मेरे सामने अंधेरा नहीं था, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा था, मेरे को साफ साफ सुनाई दे रहा था। जीवन में मौके मिलते हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है। इसके लिए
बहुत जरूरी है आपके पास एक और लाइट हो, एक और प्रकाश हो, ताकि धुंधला कुछ ना रहे। मैं आपको वायदा करता हूँ, स्टोर साइड मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे हैबिट डाली थी, मुझे तब नहीं मालूम था। मेरे पेरेंट्स ने इस हैबिट को और पक्का कर दिया और मैंने इस लिगेसी को अपने पापा से मिले इस जायदाद को अपने बच्चों को सौंप दिया कि तुम ओम भूर्भुवः रोज किया करो, ये विज्ञान है। तो चले इस ज्ञान यज्ञ में हम गायत्री का आवाहन करते और कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी सुनाई दे हमको बराबर सुनाई पड़ना चाहिए, यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे हमको बराबर दिखाई पड़ना चाहिए। चाहते हैं तभी तो यहाँ आने का पर्पज सॉल्व होगा। तो चले, ज्वाइन मी इन चैंटिंग द गायत्री मंत्र, इन्वोकिंग द डिवाइन लाइट, कि आ जा और बन जा हमारा सारथी। बॉबी जी प्लीज। नहीं, चले हम करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम बोलते हैं कि प्रचोदन करो हमारी बुद्धि का। आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, जैसी मति वैसी गति। चाहते हैं ना कि बिजनेस में स्पीड बढ़े, यस और नो? चाहते हो बिजनेस में स्पीड बढ़े, गति बढ़े, तो मति को गति देनी होगी। मति को गति देनी होगी, मस्तिष्क को गति देनी होगी। उदाहरण दूंगा दो और इस कन्वेंशन की बुनियाद रख दी जाएगी, समझ लीजिएगा। महाभारत में एक बहुत इलस्ट्रियस एग्जाम्पल आता है। गुरुद्रोण अपने शिष्यों को लेकर मैदान में जाते हैं, विवेक जी अपने शिष्यों को लेकर मैदान में जाते हैं, सबके हाथ में धनुष, कमान, बाण। सामने वृक्ष पर एक लकड़ी की चिड़िया, अरे सुन रखिए आप, सुन रखिए, मालूम एक लकड़ी की चिड़िया, और क्या कहते हैं, इस लकड़ी की चिड़िया की आंख को भेजना है। अभी भेजेगा कोई नहीं, कहे सवाल का जवाब दोगे। सवाल क्या? एक एक शिष्य को बुलाया गया, आपको क्या दिखता है? पहले ने जवाब दिया, कितना सुंदर यहाँ पर गार्डन है, कितना सुंदर वृक्ष है, हरे रंग के पत्ते हैं और क्या पक्षी है। उन्हें बोल दिया गया, यू आर डिस्क्वालिफाइड, नीड नॉट टू पिक योर बो एंड द एरो, उठाने की भी जरूरत है। दूसरे को बोला गया, तुमको क्या दिखता है? मुझे तो वही शाखा दिखती है जहां पर पक्षी बैठे, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अर्जुन की बारी आई तो पूछा गया, तुमको क्या दिखता है? और जवाब क्या था? मुझको केवल पक्षी की आंख दिखती है, मुझको केवल मेरी मंजिल दिखती है। अर्जुन उस सदी के महानतम धनुर्धर बने। ये कहानी कोई नई खोले ना है, आप सबने सुन रखी है, लेकिन अफसोस केवल सुन रखी थी, केवल सुन रखी थी। दिस नॉलेज इज mere information unless and until it brings in you transformation. ये ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित रह जाएगा अगर उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। चलो एक और बात सुनो, समझ में आ जाएगा कि फोकस माइंड, कंसंट्रेशन की ताकत क्या होती है। एक बार एक धनुर्धर जिसमें बहुत कला थी, he had a perfect skill to operate the bow, he was a master of his kind, the ego overpowered him, ego आ गई कि मैं तो कुछ भी भेज सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे एक भौंकता हुआ कुत्ता का मुंह बंद करना है तो एक तीर चलाया और तीर सीधा भौंकते हुए कुत्ते के मुंह के अंदर, दूसरा तीर साथ चलाया और वो तीर जो भी कुछ मुंह में था उसके दो टुकड़े कर दिए। अपनी धनुर्विद्या का उसे बहुत ईगो हो गया। उस जमाने के गुरु के पास गया, लुक पीपल टेल मी यू आर द मास्टर, आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बीट माई टेक्निकल स्किल, जो मेरे पास हुनर है मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप ऐसा कुछ यहाँ पर दिखा पाए। वो मास्टर, उसने अपना धनुष नहीं उठाया, उसने सिर्फ हाथ थाम लिया उस धनुर्धर का और अपने साथ ले चला। उसे लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, अनडिस्टर्ब्ड। पहाड़ी की चोटी पर जो पहुंचा वहां दृश्य कुछ ऐसा था,
एक आगे 10 फीट का लकड़ी इस प्रकार से हैंग किया हुआ, द लॉग ऑफ वुड विच वॉज हैंगिंग अनसर्टेनली। उस मास्टर ने क्या किया, इस हजारों फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ऐसे झूमते हुए उस लकड़ी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। तो किस गो आउट, अपना धनुष निकाला और दूर एक वृक्ष की ओर इशारा करके उसे बाण से फेंक दिया। अब बोला गया उस धनुर्धर को, अब तेरी बारी है, तू आजा। धनुर्धर ने एक पांव यहां पर रखा और डगमगाने लगा और वापस लौट आया। अब मास्टर जो कहता है वो आपको सुनना होगा। अब मास्टर जो कहता है आपको सुनना होगा। मास्टर क्या कहता है? अचीवर्स, खासकर हम सबके लिए, मास्टर ने आपके लिए कुछ कहा। क्या कहा? यू हैव द स्किल, यू हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट your bow and the arrow. You have the talent, you have the power, you have the authority to use your bow and arrow as per your wish. But sorry, Mr. Achiever, you do not have the power to control your mind, which is wavering, which cannot bear stand here, it cannot bear stand. The power of focused mind. हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा फॉलो बहुत अच्छा है जब चेक बन रहे होते हैं, निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो केवल टैलेंट की बात हुई। हम कन्वेंशन में आए हैं एम्पावरमेंट के लिए। किस लिए? एम्पावरमेंट के लिए। तो दोस्तों, इस पूरी कन्वेंशन का तो सबसे बड़ा ज्ञान है, मैंने आपके साथ साझा किया कि यहाँ से हमको अपनी बुद्धि को सशक्तिमान करके जाना है। बिकॉज जिसकी बुद्धि सशक्त हो गई वो सशक्त देश बन गया, और शक्ति पाने के लिए उसे प्योरीफाई करना होगा। प्योरीफाइड इंटेलेक्ट इज एम्पावर्ड इंटेलेक्ट, प्योरीफाइड लीडरशिप इज एम्पावर्ड लीडरशिप। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को कि जो 2 दिन आप यहाँ पर बिताने वाले हैं, माँ गायत्री आपके साथ रहे। आपको वही सुनाई पड़े जिसमें आपकी जीत छिपी है, आपको वही दिखाई पड़े जिसमें आपकी जीत छिपी है। आपका माइंड पर आपका पूरा कंट्रोल, पूरी गीता इसी पर आधारित। अर्जुन युद्ध के मैदान में घबराने लगता, टैलेंट तो था, महानतम धनुर्धर, लेकिन गांडीव नहीं उठा पाया क्योंकि बुद्धि सुनिश्चित नहीं थी। कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर किया क्या? उसकी बुद्धि को सिखा दिया। ओ गलतफहमी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। यहाँ पर आपकी किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर आपके साथ आई किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर केवल आपको विजडम मिलेगी अपनी प्रॉब्लम का अपना सोल्यूशन खुद ढूंढने के लिए। जब गीता का ज्ञान अर्जुन को मिल गया, अर्जुन कहने लगा भगवान अब तो मेरे पास पूरा ज्ञान है। अब तो कृष्ण क्या कहते हैं? गांडीव उठा अर्जुन। अर्जुन कहते हैं लो, जब तक ज्ञान नहीं था उससे पहले भी बोल रहे थे गांडीव उठा अर्जुन। अब ज्ञान मिल गया उसके बाद भी, तो कृष्ण कहते हैं गांडीव तो तुझे खुद ही उठाना होगा। यहाँ से जाने के बाद दोस्त, लड़ाई तो तुम्हें अपनी खुद ही लड़नी होगी। आज मुझे उपनिषद शब्द का रहस्य मालूम पड़ा। ज्ञान की बात है, अच्छी लगे तो पकड़ लेना। संस्कृत लैंग्वेज बाद में पैदा हुई, उससे पहले वैदिक लैंग्वेज थी जिसमें वेद लिखे गए, मुनि वेद व्यास द्वारा। वेदों से बना पुराण, फिर उपनिषद। उपनिषद का मतलब जानते हैं क्या है? उपनिषद मतलब नजदीक आकर बैठना, नजदीक आकर बैठना ज्ञान का रहस्य पाने के लिए। ये उपनिषद का लिटरल मीनिंग है। नजदीक आकर गुरु के समीप बैठना
ज्ञान पाने के लिए, मैं नहीं कह रहा, ये उपनिषद का मतलब है। आगे बोलोगे तो मालूम क्या पड़ेगा, यहाँ पर बहुत कम लोग ही बिठाए जाते हैं, क्योंकि ज्ञान हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्ञान बटोरना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेट अस थैंक ऑलमाइटी हु हैंडपिक्ड ईच वन ऑफ अस, जिन्होंने हमको चुना। बहुत से लोग होंगे, जलंधर में न्योता दिया गया होगा, अमृतसर आ जाओ, कन्वेंशन है, उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया होगा, बहुत दूर है। और यहाँ पर बैंगलोर से कौन कौन आए, पर हाथ खड़ा था। बैंगलोर से यहाँ आने में मैं समझता हूँ एक तरफ की यात्रा 2.5 दिन की होगी, लगभग 52 घंटे की यात्रा करके आप यहाँ पर पहुंचे। सलाम करता हूँ आपकी भूख को। आप पात्र हैं, बस अब अर्जुन बन जाएं। अर्जुन को गीता में कृष्ण कई नामों से पुकारते हैं, उनमें 2 नाम बार बार गीता में आते हैं। पहला पार्थ और दूसरा कौनते। कौनते मतलब कुंती का पुत्र, पार्थ मतलब पृथा का पुत्र। कुंती के भी 2 नाम। कुंती मतलब द वन हु कुड इन्वोक डिविनिटी, जो दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल करना जानता, उसे कुंती बोलते हैं। उसके नतीजे को अर्जुन बोलते हैं। तो आप दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए, बिल्कुल गलत बात अगर कोई कह दे कि सिंपल नॉलेज, स्कूल की नॉलेज से कोई बहुत बड़ा बन जाता है, मैं मान ही नहीं सकता। जो भी कामयाबी के शिखर पर है, उसके पास कुछ पैरानॉर्मल पावर है, कुछ है उसके पास जिसका वो इस्तेमाल करता है। कुछ रिद्धियां हैं, कुछ सिद्धियां हैं, कुछ निधियां हैं, जिनका इस्तेमाल करके इंसान बहुत ऊंचा निकलता है। तो आप कौन से बने, इससे पहले आपको पार्थ बनना होगा। और पार्थ मालूम है किसे कहते हैं? पार्थ किसे कहते हैं मालूम है? पार्थ कहते हैं उसे जो सेक्रीफाइस करना जानता है, जो बैरागी बनना जानता है। नहीं, बैरागी का मतलब वो नहीं कि सब छोड़ के हिमालय पर पहुंच जाओ ना। बैरागी का मतलब है किसी एक मंजिल को पाने के लिए छोटी मोटी ख्वाहिशों को साइड लगा दो, उसे बैरागी बोलते हैं। एक उद्देश्य पूर्ति के लिए अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को खत्म कर देने वाले व्यक्ति को पार्थ बोलते हैं। तो हे पार्थ, कौनते बन जाओगे, उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन पहले पार्थ बनना होगा। यहां पर गर्मी लग रही है, ये आपकी बुद्धि के एक हिस्से को चुराएगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, इस नटखट बुद्धि एक ही वक्त में 64 अलग अलग स्थानों पर रहती है। कितने स्थानों पर? इट इज नॉट माई फिलॉसफी, दिस इज नॉट विच इज माई पीस ऑफ नॉलेज, इट इज समथिंग आई हैव एक्वायर्ड फ्रॉम शास्त्रास। शास्त्रास कहते हैं कि बुद्धि एक ही वक्त में कितनी लोकेशन पर रहती है? 64। उदाहरण के तौर पे आप ही की बुद्धि इस वक्त मेरे को सुन रही है, आप ही की बुद्धि बार बार नितिन धीमान जी कैसे यहाँ पर आए ये सोच रही है, आप ही की बुद्धि में से किसी को कुछ गर्मी लग रही है, उसी बुद्धि का एक हिस्सा ये देख रहा है कि भूख कब जाएगी, उसी बुद्धि का एक हिस्सा ये सोच रहा है कि ब्रेक कब मिलेगी। तो बुद्धि एक ही वक्त में कितने स्थानों पर हुई? 64 स्थानों पर। विजयी पथ पर चलने वाले लोगों का मार्गदर्शन किस ज्ञान से होता है वो सुन लो। इन 64 जगहों से अपनी बुद्धि को वापस यहाँ पर जो समेटना जानता है, उसकी बुद्धि सशक्त हो जाती है। किसी को फोकस्ड माइंड बोलते हैं। विवेकानंद से पूछा गया, जनाब, अमेरिका में पूछा गया कि अगर आपको अध्यापक बना दिया जाए तो आप स्कूल में अपने विद्यार्थियों को क्या सबक पढ़ाना पसंद करोगे? और जवाब क्या था? जवाब था कि पहले 10 साल एक ही सब्जेक्ट पूछा गया। क्या? एक ही सब्जेक्ट पूछा गया। क्या? और जवाब था कि मैं इनको मेंटल कंसंट्रेशन हासिल करना सिखाऊंगा। मेरा बेटा लॉन टेनिस सीख रहा है, 6 महीने हो गए, अभी भी नेट पर नहीं खेलता है, सामने प्लेयर के साथ नहीं खेलता है। इंडिया का नेशनल रैंकिंग 4 इनके कोच। मैं एक बार गया कि जनाब, पहले दिन आया तब भी ये हो रहा था कि आप बॉल फेंकते हो, मेरा बेटा रैकेट से हिट करता। हफ्ते बाद आया तब भी वही, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद भी वही का वही। तो कोच का जवाब क्या था?
कि आपको भी नहीं पता ये क्या सीख रहा है। ये फोकस करना सीख रहा है। अगर इस उम्र में फोकस करना आ गया, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, 2003 की बात है, बहुत सा प्रेशर था परिवार का, मुझे नौकरी करनी चाहिए, आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो प्रेशर भी मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा ऊर्जा चुरा लेता था। लेकिन मैं आगे बढ़ पाया क्योंकि मेरे साथ गुरु थे, मेरे साथ ज्ञान था, मेरे साथ गायत्री मंत्र था। मेरे को वही सुनाई दिया जो मैं सुनना चाहता था, जो मेरी तरक्की के लिए जरूरी था, और बिल्कुल फोकस होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। भगवान से प्रार्थना कि आप यहाँ से जब लौटे, आपका मस्तिष्क आपका गुलाम बन चुका हो जाना चाहिए। नहीं तो अभी उल्टा हो रहा है। मस्तिष्क हम पर हुक्म चलाता है, कब सोना है, कब उठना है, सब उसके हाथ में है। यहाँ से लौट कर जाओ, मस्तिष्क को एक ही बात समझ में आनी चाहिए, या तो मैं अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, या तो फिर अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। नहीं तो फिर अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, नहीं तो फिर शहर का सबसे बड़ा आदमी ही बनूंगा। केवल धन की बात नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनूंगा, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनूंगा। मैं भारत की लड़ाई शुरू होने से पहले का जब पर्दा उठा नहीं था, एक दृश्य याद कराता हूं। कृष्ण और दुर्योधन, अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास पहुंचे, चुनाव रखा गया, एक को मिलेगी अक्षरी सेना और एक को मिलेगा कृष्ण का साथ। दुर्योधन ने क्या चुना? सेना, टीम चुनी। और कृष्ण ने और अर्जुन ने क्या चुना? कृष्ण। और कृष्ण ने क्या कहा? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हथियार के बिना कृष्ण का मतलब जानते हो क्या था? कृष्ण का मतलब था ज्ञान, कृष्ण का मतलब था निदान, और अर्जुन का मतलब था जिज्ञासा, भूख, आग। हर अग्नि, हर जिज्ञासा का निदान कृष्ण में था। उसने ज्ञान को चुना। ज्ञान ही सशक्तिकरण कर सकता है। लीडर तो आप हैं यहाँ पर आए, एम्पावरमेंट के लिए आपको सिर्फ विजडम चाहिए। जब मुनि वेद व्यास ने फैसला किया कि मैं वेदों की रचना करूंगा, ब्रह्मा को कहा मेरे को असिस्टेंट चाहिए, इतना ज्ञान इतने वेग से बह रहा है, मैं अकेला ना कर पाऊंगा। ब्रह्मा ने छुट्टी लगाई गणेश की, तुम जाओ और मुनि वेद व्यास की हेल्प करो। गणेश वहां पहुंचते, मुनि कहते हैं लिखो, गणेश कहते हैं जल्दी जल्दी में पेन लाना भूल गया। मुनि कहते हैं अब मैं रुक ना पाऊंगा, ज्ञान क्रोध आ गया। क्या करते हैं गणेश? अपना एक दांत तोड़ते हैं, उसकी कलम बनाते हैं और वेदों की रचना शुरू करते हैं, और तब से नाम पड़ जाता है एक दंत दयावंत। मालूम ऋषि कहना क्या चाहता था? ऋषि कहना चाहता था कि देख, गणेश का स्वरूप मैंने इस कहानी में कैसा बनाया है। आपको याद है ना? हाथी की सूंड, हाथी, और एक हाथी को सबसे प्रिय मालूम है क्या होता है? उसका दांत। एक हाथी की सबसे बड़ी संपत्ति उसका दांत होता है। ऋषि कहना क्या चाहता था कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कुछ भी बलिदान देना पड़े तो दे दो, लेकिन ज्ञान के बूटे रहो। एक दंड दयावान, पार्थ बनो। जहाँ कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी परेशानी हो जाने दो, हम ज्ञान लेकर जाएंगे, हम ज्ञान लेकर जाएंगे। I do not know what your dreams are. नहीं मालूम मुझे तुम्हारे क्या सपने, ना मैं पूछता। I don't know what are your dreams. Neither would I ask. I don't know आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं उस सपनों को पूरा करने के लिए। I do not know the problem you are facing to make your dreams come true. But I certainly know the dreams you are holding in your mind is possible. It is possible. ये possible है, बस माइंड पर कंट्रोल करना होगा। मुश्किलें आएगी,
You will incur lot of pain, lot of failure, lot of hardship. बहुत मन में आएगा भगवान आखिर मैं ही क्यों, इसकी दिक्कतें होता है कई बार ऐसा, yes or no, होता रहेगा हमेशा। लेकिन रुकना मत, क्योंकि परेशानियां भी कहाँ रुकती हैं, वो आती ही जाने के लिए। परेशानियां कभी नहीं रुकती। आपको थोड़ा सा उससे जुड़ के रहना होगा। मेरे जीवन में, मेरी जीवन के अंदर पिछले 7 साल से एक बहुत बड़ा एक परीक्षा चल रही थी मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, जिसने मेरी ऊर्जा का बहुत हिस्सा नाजायज खर्च करवाया। अपने गुरु सोनी साहब के आशीर्वाद से मुझे जुड़ने की थोड़ी सी कला करने सिखाई। जब आप जुड़ते हो मन शांत रहता है। जब मन शांत रहता है तो एक आवाज आती है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्यूशन। क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। आज से करीब 2.5 महीने पहले दिल्ली में एक पावन स्थान पर, तो गुरु जी का बड़ा मंदिर कहते हैं, छतरपुर में कभी घाट, मैं वहां पर गेट के अंदर एंटर करता हूँ और मन में से आवाज कब सुनाई पड़ती है मालूम है? जब कानों में शोर ना पड़ रहा हो, तभी तो मन की आवाज सुनाई देती है। मंदिर में प्रवेश करते ही मस्तिष्क रुक गया और मन ऊपर आ गया। गीता में भगवान कहते हैं मन मनोभवा, अपना मन और बुद्धि दोनों मुझ पर समर्पित कर दो, तो जैसे मैं चलाऊंगा तू चलेगा, जैसे मैं गाऊंगा तू सुनेगा। अंदर से आवाज क्या आती है कि अब से 1 महीने के अंदर तेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जो तेरी सालों पुरानी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। इसके बाद 2 दृष्टिकोण, या तो मैं इसको मन का वहम सुनूं या मैं इसको उसका इशारा सुनूं। 1 महीने के अंदर तो ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो अगले 1 महीने के अंदर मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को खत्म कर देते हैं। गुरु जी का मंदिर छतरपुर में। कहना क्या चाहता हूँ, इफ यू आर कनेक्टेड, अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको इशारे नजर आते हैं, आपको इशारे सुनाई पड़ते हैं। दोस्तों, हर कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। Everybody is not going to believe in you. Everybody is not going to join you. Everybody is not going to have faith in your vision. But it is necessary to know. आप जान लो, you are an uncommon breed. आप एक अलग नस्ल हैं। You are an uncommon breed. आप एक अलग किस्म की नस्ल हैं। और मुबारकबाद आपको, आपकी नस्ल के लोग पीछे समाज में बहुत कम मिलते थे, ये शिकायत रहती, आओ मिलवाता हूँ आपको उसी नस्ल के और लोगों से। Those who are unstoppable, those who are unreasonable, those who are unimaginable, those who are psycho business models. तो जो भी सपना है मस्तिष्क में है, उस मस्तिष्क को बोल दो, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तामील फरमाओ। ड्रीम पूरा होना चाहिए। नो वन कैन स्टील माई ड्रीम। मेरा सपना मेरी आत्मा की संतान है, इसे मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। और सुन लो, खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं तुझे को प्राप्त ना I win. Come on, can you repeat after me? Game is not over. Louder. Game is not over until I win. Until I win. Until I win. मुझे जीतना है. I am born to win. Come on, I am born to win. जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। I promise, ये विचार अगर दिमाग में घर कर गया, आप अपने सपनों को जरूर जी पाओगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ I officially announce the 4th National Convention open. होती है कोशिश करने पर मुश्किल होती है।
मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। मैं परमपिता परमात्मा से ये दुआ करती हूँ और आए हुए सब बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं और ये जैसे आज मेरा इस बच्चे को जन्म देना सार्थक हुआ समझती हूँ। साडी रूहां दी रिश्तेदारी ओम शांति। दूर दराज से आए और नजदीक से आए, दूर दराज से आए और नजदीक से आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं तुमको आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मैसेज करना चाहती हूँ। We would certainly request my mother to come on stage back again. अभी मैं सॉरी बीच में रुकता हुआ, बीच में बाधा बनता हुआ मैं स्वागत करना चाहूँगा पंजाब की शान जिनको